Hello, dear students. Assalamu alaikum. Hope you will be fine. I welcome all of you with a new concept here, and that is coal and petroleum as natural resources, important natural resources and their consequent management. ठीक है, तो कोल एंड पेट्रोलियम की बात करेंगे हम आज यहाँ पे. Coal and petroleum, these are important natural resources. These are important natural resources. Natural resources, ठीक है. Coal and petroleum are important natural resources, and these are fossil fuels. These are fossil fuels as energy resources for man, as energy sources for man. ठीक है. अब यहाँ पे पहले आ जाएंगे इस वाले चीज की तरह. ये फॉसिल फ्यूल होता क्या है? फ्यूल तो आपको पता ही है क्या, एनी सबस्टेंस व्हिच व्हेन बर्न्ड गिव्स एनर्जी एंड इज this energy released from that substance is utilized in order to carry out different processes, and that is fuel. तो fossil fuel क्या होता है? fossil fuel क्या होता है? fossil fuel is a fuel that is obtained and or we can say that is formed naturally deep under the earth's surface by anaerobic decomposition of that substance. ठीक है, anaerobic decomposition of that substance deep under the soil surfaces which have been buried millions of years ago. ठीक है, अगर यहाँ पे soil surface है कि अगर कोई fossil fuel है, coal and petroleum की यहाँ पे बात, coal and petroleum और fossil fuels, these fossil fuels are formed, the coal and petrol is formed deeper layers of the soil from plants and animal. ठीक है, biomass from plant and animal biomass which has been buried deep under the soil surface millions of years ago. ठीक है, and later on after bury, जब वो दफन हो जाते हैं सॉइल सरफेस के डीपर लेयर्स में, निचले वाले तहों में वो डिपॉजिट होते हैं. उसके बाद उनकी एनारोबिक डिकम्पोजिशन होती है, और एनारोबिक डिकम्पोजिशन होती है नेचुरली अंडर द सॉइल. दैट रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, एंड दिस कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एज फ्यूल्स chiefly, and these fuels are fossil fuels. ठीक है, fossil fuels are the fuels which are formed by burning of by which are formed from the biomass of plants and animals under the deeper layers of the earth millions of years ago through natural anaerobic decomposition or degradation process. ठीक है, these are fossil fuels. तो these fossil fuels like coal and petroleum, coal is formed by sedimentation or sedimentation of plant substances और प्लांट बॉडीज. ठीक है, प्लांट बॉडीज बरी होती है, सेडिमेंट डाउन होती है अंडर डीपर लेयर्स ऑफ द सॉइल, फिर कंपैक्शन होती है इनकी. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उनकी एनारोबिक डिकम्पोजिशन होती है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन. तो डिकम्पोजिशन के बाद वहां पे एक हार्ड ब्लैक सबस्टेंस तैयार होता है, एंड दैट हार्ड ब्लैक सबस्टेंस formed by decomposition, anaerobic decomposition or degradation of buried plant systems. ठीक है, plant systems under the deeper layers under the soil millions of years ago. ठीक है, that result is the formation of a compact hard black structure, and that is known as coal. ठीक है, उसको coal कहते हैं. तो on the other hand this petroleum is basically a black viscous liquid, यानी कि गाढ़ा जो होता है वो माया लिक्विड होता है, माया. ठीक है, गाढ़ा माया की तरफ ए ब्लैकिश होता है. दैट इज फॉर्मड अंडर द डीपर लेयर्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम डिपोजिशंस ऑफ एनिमल्स. फ्रॉम एनिमल्स डिपॉजिट होते हैं अंडर द डीपर लेयर्स ऑफ द सॉइल, उनकी फिर डिग्रेडेशन होती है
एनारोबिक डिग्रेडेशन होती है, दैट result naturally under the soil. That result is the formation of a blackish liquid, viscid liquid or viscid substance, liquid substance, and that is known as petroleum. That is known as petroleum. ठीक है, तो petroleum is formed by burning of dead uh, animal systems, while as the coal is formed by burning and compaction, deposition of the plant systems deeper under the deeper layers of the earth, millions of years by anaerobic decomposition or डिग्रेडेशन प्रोसेस. ठीक है, अब हम आ जाएंगे कि कोल एंड पेट्रोलियम जो है ये इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, बिकॉज दे प्रोवाइड दे एक्ट एज अ चीफ एनर्जी रिसोर्सेज फॉर मैन. ठीक है, दे एक्ट एज द चीफ एनर्जी रिसोर्सेज फॉर मैन. अगर हम कोल की बात करेंगे, कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम्स, इंडस्ट्री एंड इज यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स. कोल की बात करेंगे, कोल इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल. तो फ्यूल क्या है? Any substance which when burns, which will undergo decomposition process and release the heat, and that heat is utilized in order to carry out different processes. ठीक है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी यूजफुलनेस है, किसी भी पर्पज के लिए उस हीट को इस्तेमाल करते हैं. that substance is known as fuel. Fuel is any substance which when burned, which when undergo ignition and it releases the amount of energy, tremendous amount of energy increase करेगा, और that energy is utilized for different purposes. ठीक है, तो उसको बोलते हैं fuel. Coal is also used as a fuel. कहाँ पे? In homes. In homes. Coal is used as a fuel in homes. किस चीज के लिए? For cooking food. For cooking food. ठीक है, उस चीज के लिए. It is used as a fuel in industry. Coal is used as a fuel in industry. इंडस्ट्री में फ्यूल इस्तेमाल होता है ये फॉर डिफरेंट पर्पस. द कोल इज आल्सो यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. कहाँ पे? एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो वाटर से जनरेट की जाती है. ठीक है, वो पानी से जनरेट की जाती है. तो दूसरा होता है थर्मल पावर प्लांट होता है, वहां से भी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी की जाती है. टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स, इन थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होता है कोल ही. तो पुराने ज़माने में क्या होता है, कोल की एक यूटिलिटी थी कि ट्रेन्स भी, ये जो रेल हुआ करती थी, वो पुराने ज़माने की रेलें जो है वो कोल पे ही चलती थी. हैं, टू प्रोपेगेट द ट्रेन्स in ancient times, coal was used in trains for transport purposes. ठीक है, तो आजकल तो वो ऑयल पे ही चलती है, लेकिन पुराने ज़माने में कोल इस्तेमाल वहाँ पे भी होता था. ठीक है, ऑन द अदर हैंड ये जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के डिफरेंट प्रोडक्ट्स है. पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. ठीक है, पेट्रोलियम से ऑब्टेन किया जाता है डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक डीजल है आपका, पेट्रोल है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन. ठीक है, केरोसिन है आपका, और जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है. ठीक है, तो दूसरी चीज़ें पैराफिन, वैक्स होता है, पैराफिन होता है, वैक्स होता है. बाकी चीज़ें जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से, पेट्रोलियम से ऑब्टेन की जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है. ठीक है, और पेट्रोलियम की भी अपनी जो है यूटिलिटी है. जस्ट लाइक अगर हम petroleum products, just like petroleum products just like petrol and diesel are used as a fuel in the transport. Petrol and diesel are used as fuels in transport industry. ठीक, in transport industry में यूज होते हैं पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल्स in order to propagate the vehicles. ठीक है, in order to run the यानी कि run the scooters, motorcycles, scooters, motorcycles, other vehicles, buses, trains, trucks.
ठीक है, एरोप्लेन एट्सट्रा, एरोप्लेन में कैरोसिन इस्तेमाल होता है, ठीक है। कैरोसिन घर में भी इस्तेमाल होता है, कैरोसिन फॉर कुकिंग पर्पजेज, कुकिंग द फूड, कैरोसिन कुकिंग द फूड, फॉर लाइटनिंग, पुराने ज़माने में कैरोसिन इस्तेमाल होता था फॉर लाइटनिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है, एनलाइट किया जाता है वो उसको, तो लैंप्स में इस्तेमाल होता था कैरोसिन। तो स्टोव्स में कैरोसिन होता है, कैरोसिन स्टोव्स आते थे पुराने ज़माने में, आज तो वो स्टोव्स नहीं है खैर, लेकिन होता है किसी किसी भी जगह पे कैरोसिन का इस्तेमाल इन स्टोव्स फॉर कुकिंग पर्पजेज, कुकिंग फूड एंड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स अपॉन विच आवर लाइफ डिपेंड्स, ठीक है। ऑल दिस एनर्जी नीड्स have so far been met mostly by coal and petroleum reserves of the earth, ठीक है। अब क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम इन द अर्थ, कोल एंड पेट्रोलियम जो है as natural important natural resources, these are limited, ठीक है, these are limited in this earth, these are limited, these are limited, that is अगर कोई चीज़ लिमिटेड है तो उसको बोलते हैं एग्जिस्टेबल, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। अब एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है कोल एंड पेट्रोलियम, इट मीन्स अगर हम इसका कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे, कंटिन्यूसली रैपिड रेट से इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बहुत ही तेज़ रफ्तार से इसका इस्तेमाल करते रहेंगे, तो व्हेन टाइम विल कम इन फ्यूचर व्हेन देयर विल बी नो कोल एंड पेट्रोलियम फॉर यूसेज, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं यूसेज के लिए कोई आपको ना कोल ही बचेगा ना ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही बचेंगे, दीज आर लिमिटेड बिकॉज दीज आर एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब क्या है कि हर आजकल के ज़माने में कोल एंड पेट्रोलियम जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट से बायोमास से बनते हैं, तो उसी पे मतलब बाय दिस वे बाय दैट वे दे आर बीइंग यूज्ड, दे आर बीइंग यूज्ड इन ऑर्डर टू कैरी आउट डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है, इन ऑर्डर टू कैरी आउट डिफरेंट प्रोसेसेस। तो पेट्रोलियम रिसोर्सेज एट ए सच रैपिड रेट इन द पास्ट विल बी गेट एग्जॉस्टेड इन द नियर फ्यूचर, ये नियर फ्यूचर में अब एग्जॉस्ट होंगे, ठीक है। अब क्या है कि उनका तो अब उनको हमें मिनिमम मिनिमम यूज करना है, मैनेजमेंट प्रॉपर यूज ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स and proper use of that things which are being run by this coal and petroleum products, ठीक है। अगर कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, अगर मिनिमल यूज इलेक्ट्रिसिटी का किया जाए तो वहां से क्या है, तो जो कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, जो कोल एंड पेट्रोलियम है, ये चीफ इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन दूसरी तरह ये लिमिटेड है, ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, ये एग्जॉस्ट होगा और इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेट किया गया है ये कि अगर हम रैपिड जो जिस रैपिड रेट से इसको आज इस्तेमाल में किया जाता है, रैपिड रेट, उसी रैपिड रेट से जो अगर हम जिस रैपिड रेट से आजकल हम इसे इस्तेमाल करते हैं, उसी रैपिड रेट से अगर इसका इस्तेमाल होता है आइंदा भी इस कंटिन्यू रहेगा, तो इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट कोल विल लास्ट फॉर अबाउट 200 ईयर्स, ठीक है, 200 ईयर्स मोर, 200 ईयर्स मोर, इट विल लास्ट फॉर अबाउट 200 ईयर्स मोर, 2 साल तक, 200 साल, सॉरी 200 साल, 200 सालों तक ये रहेगा कोल, तो उसके बाद वो कोल नहीं बचेगा, बाकी उसके बाद कोल आपको कहीं नहीं मतलब कोल पाओगे। तो पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम के बारे में ये एस्टिमेट किया गया है कि अगर उसी रेट से उसी रफ्तार से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ये जो है कंज्यूम किया जाए, तो पेट्रोलियम विल लास्ट फॉर अबाउट 40 ईयर्स मोर, यानी कि पेट्रोलियम 40 साल तक रहेगा बाकी, और जो कोल है, कोल 200 साल तक बाकी रहेगा, उसके बाद ना कोल मिलेगा और ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू कंजर्व और सेव कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज, ठीक है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि हम कोल एंड पेट्रोलियम जो रिसोर्सेज है उनको क्या है, उनको सेव करें, उनको कंजर्व करें, उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ coal and petroleum as a natural resources, ठीक है। it is therefore necessary to conserve or to save coal and petroleum resources of the earth by reducing their consumption so that they may last for as long as possible, ठीक है। तो it is necessary to save or conserve
coal and petroleum, coal and petroleum, coal and petroleum resources, ठीक है, coal and petroleum resources by reducing their consumption, यानी कि इनकी कंजप्शन लेवल को कम करना है, by reducing their consumption, कि कंजप्शन लेवल को कम करना है, ठीक है, मिनिमम करना है। तो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स है जिनसे हम ये जो है रिड्यूस करेंगे कंजप्शन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स है जिनसे हम ये कम करेंगे कि मिनिमम ये जो है कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज यूज होंगे, मिनिमल यूज ऑफ दिस। तो बहुत से ऐसे तरीके हैं, यानी कि अगर सपोज हमारे घरों में लाइट्स होती हैं ना, इलेक्ट्रिक लाइट होती है हमारे घरों में, या फैन होते हैं, टेलीविज़न एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, ठीक है, तो उनको अगर स्विच ऑफ द लाइट्स करेंगे, या फैंस, टेलीविजन एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वे नॉट नीडेड, जब हमें फैन की ज़रूरत ना है, नहीं हो टेलीविज़न तो बंद रहता ही है, लेकिन बल्ब्स, खासकर इलेक्ट्रिक बल्ब्स का, कि उनको बंद करेंगे हम, ठीक है, स्विच ऑफ करना है electric lights, fans, television and other electrical appliances when not needed। तो फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट पैरामीटर टू सेव और टू कंजर्व कोल एंड पेट्रोलियम। अब आप कहोगे ये कैसे, क्योंकि कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा इस्तेमाल होगी तो उसका नेचुरली उसका असर पड़ेगा कोल पे, कोल कंजप्शन पे, कॉन्सिक्वेंटली कोल कंजप्शन ज़्यादा लेगा ये, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, अगर इलेक्ट्रिसिटी अब है, स्विच ऑफ करेंगे लाइट्स, यानी कि स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट्स और बल्ब्स, टेलीविजन